वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का 11th चैप्टर द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s। कि ब्रिटिश रूल से लोग जो हैं वो असहमत या कहें कि संतुष्ट क्यों नहीं थे 1870 से लेके 1880 के दशक तक। सो आंसर के लिए चलते हैं हम। देयर वॉज ग्रेट dissatisfaction with British rule in 1870s and 1880s. Some of the reason for this dissatisfaction are as follows. इनके जो कुछ reasons अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर रहे हैं। The Arms Act passed in 1878. This act disallowed Indians for possessing arms. कि आर्म एक्ट जो 1878 में पास हुआ था, इंडियंस ने उसे हम कहें कि डिसअलाउड किया था इंडियंस को पोजेसिंग आर्म्स में पार्टिसिपेशन के लिए। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट in 1878, and this act was aimed at silencing those who were critically of the government, and at this act the government could confiscate the assist of newspaper if they publish anything that was found objectionable. कि इस एक्ट के थ्रू जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था 1878 में, तो इसमें जितने भी न्यूज़पेपर एजेंसीज थी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि अगर वो इस तरह का गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट करते हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल होगा, विरोधाभास होगा सरकार के विरुद्ध, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और थर्ड अगर हम बात करें तो द अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी in 1883, the government tried to introduce the Albert Bill. This bill provided for the trial of British or European individuals by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. However, the white opposition forced the government to withdraw the bill. This encouraged the Indian further. So overall in this question we have to be say three main points that have to be show the dissatisfaction of people against the British rule during the 1870s and 1880s. Now come to the second question that has to be started here. Who did the Indian National Congress wish to speak for? Now for answer, National Congress wish to speak for all the peoples of India, irrespective of class, color, caste, creed, language or gender. It stated that India, its resources and system were not only one class or community of India, but of all the different communities of India. It means कि कांग्रेस में ये बोला गया था कि कांग्रेस किसकी बात करती है, तो कांग्रेस नॉट ओनली टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल इंडिविजुअल, वी आर सेइंग दैट, बट in with the help of Congress we have to be talk about all the peoples who are Indians without any discrimination regarding class, color, caste, creed, language or gender. It means it's a party of community, not only a class. So come to the third question, students. What economic impact did the First World War have on India? That which type of impact we have to be see uh, on India on First World War. So let's answer. The First World War led to huge rise in the defense expenditure of the government of India. It means in this World War, India has to be taken a huge defense expenditure. The government is in return increases taxes on individual income and business profit, increased military expenditures and demands for war supply led to a sharp rise in the prices, which created great difficulties for our common peoples. It means that the government should increase that all the taxes, and the people of the, we can say a common people, are really suffering from the crisis of the राइजिंग इन द प्राइसेस, यानी कि कीमतें जब बढ़ गई तो जो आम जनता थी उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा. ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रिप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर. क्योंकि हम कहें कि जो बिजनेस क्लास के लोग थे या जो सुपीरियर लोग थे, दैट दे हैव टू बी गॉट ह्यूज प्रॉफिट्स आफ्टर द वॉर. द वॉर created a demand for industrial goods such as jute bags, clothes and reels, and caused a decline in the imports from the other countries into India. As a result, Indian industry expanded during the war. यानी कि हम लोग जो बाहर से आयात करते जो भी मटीरियल
वो इस वॉर के दौरान जो है क्या हो गया कि इंपोर्ट करना बंद हो गया। और इसमें जो हमारा हम कहें कि जो क्रिएटेड डिमांड्स थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, जैसे जूट बैग्स हैं, क्लोथ्स हैं, रेल मटेरियल है, उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई। और इस दौरान हम कहें कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ था उनका भी एक्सपेंडेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था ड्यूरिंग दिस वॉर। Come to the question number 4. What did the Muslim League resolution of 1940s ask for? कि मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन जो था 1940 वो किसके बारे में बात करता था? मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940s आस्क फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। यानी इसके अंदर मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से जो है स्टेट की डिमांड रखी गई थी। हु वर द मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? कि मॉडरेट्स जो हैं वो कौन थे और उन्होंने जो है किस तरह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम कहें कि जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसको किया था। इन द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस द कांग्रेस वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मैथड्स। तो कांग्रेस जो है फर्स्ट अपने जो 20 ईयर्स थे उसमें एक मॉडरेट की तरह सामने आए थे, कुछ मैथड्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। द कांग्रेस लीडर ऑफ दिस पीरियड वर कॉल्ड द मॉडरेट्स। और इस समय में कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे हम कहें उनको मॉडरेट्स कहा गया था। दे प्रपोज्ड अस टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन नॉन वायलेंट मैनर, यानी अहिंसात्मक तरीके से इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है संघर्ष आरंभ किया था। विच द radical called politics of petitions. They wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule, कि इन्होंने लोगों को अवेयर करना चाहा जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ में जो अनजस्ट फेयर कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो एक्चुअल में हम कहें कि किस तरह का भेदभाव हमारे साथ में कर रहे थे। उन्होंने जो है हम कहें कि न्यूज़पेपर पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे, शो हाउ द ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रुइन ऑफ द कंट्री। और उन्होंने लोगों को ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे देश का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। उन्होंने खुले रूप से हम कहें कि भाषण दिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट और अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं देश के दूसरे भागों में भेजे और उनको खुले रूप से प्रचार करने के लिए कहा कि वो लोगों तक अपने जो आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, दृष्टिकोण हैं, उनको मोबिलाइज करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे देश का शोषण कर रहे हैं। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। और वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस ऑफ आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस का, सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियन। तो जो भी भारतीयों की डिमांड होगी उनको वो एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट्स? कि इन दोनों की जो हम ये कहें कि जो पॉलिटिक्स थी वो डिफरेंट कैसे थी? तो द रेडिकल वर अप्रोच to the politics of prayer, followed by the moderates within the Congress. They explored more radical objectives and methods. It means that they have to be taken more explored radical objectives. They emphasize the importance of self-reliance. उन्होंने आत्म सम्मान की बात वहाँ पे की, आत्म समर्पण की बात की, and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. कि लोगों को खुद की इम्पोर्टेंस समझनी होगी, सिर्फ सरकार के भरोसे वो नहीं रह सकते, एज वॉज द स्टेट पॉलिसी ऑफ द मॉडरेट्स। दे बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। ये मानते थे कि जनता को खुद अपने लिए खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, जबकि हम कहें कि मॉडरेट्स ऐसा नहीं मानते थे। डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट took in the different parts of India। कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, उसको डिस्कस करना है। हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी? लोग जो है गांधी जी को किस तरह से समझते थे? ड्यूरिंग द 1921 एंड 22 द नॉन कॉपरेशन जो असहयोग आंदोलन हुआ था गेन मोमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हज़ारों की संख्या में बच्चे जो थे गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स
गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, कि बहुत सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी जो रिसर्चेस थी लॉयर्स के वो लीव कर दिए। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर, जितनी भी ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों को उपाधियाँ दी हुई थी उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। लेजिस्लेचर्स वर बायकॉट, जो भी हमारी लेजिस्लेचर थी उसका बायकॉट कर दिया गया। पीपल बॉर्न फायर्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, और लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों की होली भी जला दी थी। इन मोस्ट केसेस द कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन वर रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस, कि हम कहें कि इसमें जो है मोस्टली अगर हम देखें तो इस असहयोग आंदोलन में जो लोकल लोग थे वो ज़्यादा अगर हम देखें तो इन्वॉल्व थे। अगर हम खेदा की बात करते हैं, गुजरात, पतिदार पीजन्स ऑर्गेनाइज नॉन वॉयलेंट कंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि किस तरह से इन लोगों ने, जो किसान वर्ग था, उन्होंने आगे आके जो लगान जिसका कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने रखी हुई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की। कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वियर शॉप्स पर पिक्टेड, कि जो हमें कहें कि जो शराब की दुकानें थी, जो शॉप्स थी, उनका विद्रोह किया गया। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, टेरिबल्स एंड पुअर पीजन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कर्नल स्टेट ऑफ द रिस्टाइटिंग द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि किस तरह से आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो वहाँ पे जो जनजातीय लोग थे और जो गरीब किसान थे उन्होंने किस तरह से विद्रोह किया था अपने कर्नल स्टेट के जो रूल्स थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके ऊपर जो है एक फॉरेस्ट लॉ लगा दिया गया था और उनका जंगलों में जाना निषेध कर दिया गया था। दे टेक अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, और इन्होंने जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह भी किया था। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग गेजिंग फीस, और कई बार ये लोग जो है जंगलों में अपने जानवरों को खुला छोड़ देते थे किसी भी तरह की चरवाहे की फीस दिए बिना। इन पंजाब की अगर हम बात करें, द अलखी एजुकेशन एंड द सिक्स हाउ टू रिमूव करप्ट मैनहेंट्स सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास, वो इस तरह के जो पंजाबी लोग थे सिख में, पंजाब की अगर हम बात करें तो जो सिख लोग थे उन्होंने जो करप्ट महंत थे उनको हटाने की बात की थी जो कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते थे। आसाम की बात करें तो टी गार्डन लेबरर्स जो थे डिमांड की उन्होंने बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, उन्होंने कहा कि हमारी जो मजदूरी है, जो हमारा रोज़ का जो हमारी कमाई है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। द डिमांड वर नॉट मेट, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं द लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन, तो वो ब्रिटिशर्स के जो बागान है चाय के उनको छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। पीपल थॉट गांधी जी एज मसीहा, लोग जानते थे कि गांधी जी जो है एक मसीहा हैं। सम वन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी, पीजेंट्स बिलीव्ड दैट ही कुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार, किसान लोग ऐसा मानते थे कि गांधी जी जो है वो उनकी मदद करेंगे, फाइट करेंगे उनके लिए ज़मींदारों के खिलाफ। वाइल एग्रीकल्चर लेबर्स, और जो कि हम कहें कि जो किसान के जो खेतों पे जो मजदूर काम करते थे वो ये मानते थे कि शायद गांधी जी जो है उनको जो उनकी ज़मीन है वो वापस दिलवाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने जो नमक का कानून था उसे क्यों तोड़ने की बात उन्होंने चूज़ की। तो गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द सॉल्ट। गांधी जी ने इस चीज़ का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने अपना एकाधिकार नमक बनाने और बेचने पर लागू किया हुआ था। इट ऑल्सो इम्पोज अ टैक्स ऑन द सेल ऑफ सॉल्ट, और उन्होंने सरकार ने क्या किया हुआ था कि जो भी नमक को बेचेगा उसे टैक्स देना होगा, जबकि मैन्युफैक्चर भी वो कर रहे थे और बेच भी वो रहे थे। गांधी जी ऐसा मानते थे दैट इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट एज इट वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड, और गांधी जी ये मानते थे कि ये पाप है क्योंकि नमक जो है वो हमारे खाने का जो है एक अहम हिस्सा है और उसके लिए आप किसी पे टैक्सेस नहीं लगा सकते हो। ही लैड टू मार्च टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी where he broke the salt law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt। और फिर जो है वो उन्होंने एक जो तटीय क्षेत्र था दांडी का वहाँ तक वो पैदल गए अपने लोगों के साथ में और एक सत्याग्रह का उन्होंने उस समय ऑर्गेनाइज उन्होंने किया और वहाँ पे जो समुद्र के किनारे जो हम कहें कि नमक बिखरा हुआ था उसको कलेक्ट किया गया और उसके बाद समुद्र के पानी को गर्म करके उसमें से नमक बनाकर उन्होंने नमक का उत्पादन भी किया। दिस मार्च
रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम। इस परेड से, इस आंदोलन से ये समझ में आता था कि हम लोगों की जो इच्छा थी, आज़ादी थी, टू स्पेसिफिक गवर्नेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। और इस तरह से गरीब और अमीर का जो भेदभाव था उसे मिटा दिया गया था। डिस्कस दोज डेवलपमेंट्स ऑफ 1937 to 1947 पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डेवलप्ड हुई थी 1937 से 47 के पीरियड में जो कि पाकिस्तान के क्रिएशन में हम कहें कि भागीदारी थी। सो फर्स्ट अगर हम बात करें द डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो डेवलपमेंट्स जो कि लीड किए जाते हैं, माने जाते हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अ टू नेशन थ्योरी फ्रॉम द लेट 1930s। A Muslim League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus। कि एक जो दो नेशंस की जो थ्योरी थी जो 1930 के बाद में स्टार्ट हुई, जो कि मुस्लिम लीग ने शुरुआत जिसकी की, वो मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उन्होंने रखी थी। प्रोविंशियल्स इलेक्शंस जो कि 1937 में हुए थे, और इनमें हम कहें कि मुस्लिम लीग जो है वर मिनॉरिटी बहुत कम थे, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इट फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटेड। यानी जब उनके जो वोटिंग्स होती थी तो उनकी जो हम ये कहें कि मिनॉरिटी उन लोगों के उसमें होती थी, तो मुस्लिम लीग को हमेशा ये रहता था, जो मुस्लिम थे उनको हमेशा एक डर सताता था कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमेशा ही क्या रहेंगे, अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे, वो हमेशा छुप जाएंगे। रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट हुआ, in 1937 the Congress rejected the Muslim League proposal for the joint Congress League and government on the United Province। कि जब मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस ने इस चीज़ से मना कर दिया। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा था। वाइड मास सपोर्ट बेस फॉर मुस्लिम लीग इन 1930s द कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज द मुस्लिम मास। क्योंकि इस समय कांग्रेस जो है वो असफल रही थी मुस्लिम लोगों को अपनी ओर करने में। दिस अलाउड द मुस्लिम लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। और इससे जो मुस्लिम लीग था उसे बहुत बड़ा सामाजिक सहयोग मिला। इट्स आउट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन अर्ली 1940s। और 1940 से पहले पहले उन्होंने काफ़ी लोगों को अपनी ओर कर लिया जो कि मोमडन थे। एंड मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। और इस समय हम कहें कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जेल में थे। फेलियर्स ऑफ टॉक, बात करने में कमी रही एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द ब्रिटिश ओपन नेगोटिएशंस बिटवीन कांग्रेस, द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी इन तीनों के बीच में बातचीत हुई स्वतंत्रता को लेकर। However, the talks failed as the League saw itself as the sole spoken person of Indian Muslims, and the Congress could not accept this claim since a large number of the Muslims still supported it। क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा था कि भारत की तरह से हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन इंडियन कांग्रेस जो था उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। क्योंकि उस समय हम कहें कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको जो काफ़ी लार्ज नंबर मुस्लिम जो थे वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए तो उन्होंने उनको बात करने का मौका नहीं दिया। प्रोविंशियल्स इलेक्शन ऑफ 1946, इलेक्शन ऑफ द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। 1946 में फिर जो है हम कहें कि क्षेत्रीय चुनाव किए गए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल constituency, but the league's success in the seats reserved for Muslims was spectacular। कि मुस्लिम लीग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड की गई थी, जो सीट्स रिजर्व की गई थी, उन रिजर्व सीट्स पे मुस्लिम का बहुत अच्छा हम कहेंगे स्पेक्टकुलर जो है उनकी परफॉर्मेंस रही थी। दिस लीड मोर डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम। और इस जीत के बाद में मुस्लिम्स को लगा था कि अब तो हर हाल में मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो फेलियर ऑफ टॉक अगेन, तो फिर बातचीत में कमी रही 1946 के बीच में, जो कि कैबिनेट सेंट 3 मेंबर्स भेजे गए थे मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल political framework for free India। This mission suggested that India should remain united and constitute itself a choose confederation with some autonomy for Muslim majority area, but it could not get the Congress and Muslim League to agree on specific details। यानी कि पार्टीशन की बात नहीं थी। दिल्ली जो है ब्रिटिशर्स ने 3 मेंबर्स को भेजा था
जो कि दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए हम अलग उनको कॉन्स्टिट्यूएंट कर दें, उनको एक अलग एरिया दे दें इंडिया के अंदर ही। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस चीज़ से सहमत नहीं थी, और पार्टीशन वॉज मोर और लेस इनएविटेबल। और इस बातचीत के अंदर जो कमी रही उसकी वजह से हम कहें कि पार्टीशन जो है, बंटवारा जो था, वो और भी निश्चित हो गया था। फिर हम कहें कि जो विद्रोह हुए आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन की जो मीटिंग थी, उसके बाद में जो फेलियर हुआ, तो मुस्लिम लीग डिसाइड ऑन अ मास एग्रीगेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। तो उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए विद्रोह, दंगे जो हैं वो दंगाइयों को भड़का दिया, और उन्होंने जो है 16 अगस्त 1946 को एक जो है डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा की। ऑन दिस डे जो है जो दंगे का जो लोग थे कलकत्ता में भड़का दिए गए, और लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और कई दिनों तक ये दंगे चलते रहे, जिसमें हम कहें कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। बाय मार्च 1947 वायलेंस हैड स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया। कि उत्तरी भारत के अंदर हम कहें कि पूरी तरह से हिंसात्मक गतिविधियां जो हैं वो बहुत चरम पे थी। पार्टीशन फाइनली जो बात हुई, पार्टीशन फाइनली द डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनलाइज एंड पाकिस्तान वॉज बॉर्न। और अंत में इस विद्रोह का जो रीज़न रहा, पाकिस्तान का जन्म वहाँ से हुआ, और 1947 में हमारा देश जो है वो दो हिस्सों में बट गया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द चैप्टर, द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर of your chapter, that's name is the making of the nation movement. Now thank you for watching this video.